ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. آج کا ٹاپک شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. برکت. برکت کا مطلب ہوتا ہے مور. مور یعنی کہ زیادہ، ہے نا. تو اب یہ زیادہ جو ہے یہ کوانٹٹی میں کیسے ہوتا ہے؟ کوانٹٹی، رکیے گا تھوڑا پرابلم ہو گیا. بسم اللہ. برکت وقت، ہے نا. تو برکت کا مطلب ہوتا ہے زیادہ. زیادہ ہم کو چاہیے. تو زیادہ کا مطلب کیا ہوا کہ ایک چیز کوئی یوزول ہے، یعنی کہ جو ہوتی چلی ہے، یعنی کہ وہ چیز برکت میں آ جائے گی، ہے نا. ہم لوگ زیادہ تر اسی طریقے سے سوچتے ہیں. تو ہے برکت کم ہے. آج کل ہمارا جو وقت ہے اس کے اندر برکت برکت کم ہے. کیوں کم ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی پہلے ہی فرما دیا تھا. مسند احمد کی جو ہے یہ روایت ہے، یہ حدیث ہے 10560. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ جہاں سال جو ہے وہ مہینے کی برابر ہوگا، اور مہینہ جو ہے وہ کس کی برابر ہوگا؟ ایک ہفتے کی برابر ہوگا. اور ایک ہفتہ جو ہے وہ ایک دن کی برابر محسوس ہوگا، اور ایک دن جو ہے وہ ایک گھنٹے کی طرح محسوس ہوگا. آج کل دیکھیے نا سسٹرز، کیسے تو جا رہے ہیں دن، ہمارے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. ماشاءاللہ سے 9 روزے ہمارے گزر چکے ہیں، ہے نا. تو کیا ہوگا کہ مطلب پتہ ہی نہیں چلے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ چیز. اور برکت کب جاتی ہے چیزوں سے؟ جب گناہ بڑھ جاتے ہیں. دن اتنی جلدی گزریں گے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل پائے گا. اور بولا کہ ایک گھنٹہ جو ہوگا وہ کیسے ہوگا کہ جیسے پام لیوز ہوتی ہیں نا، جو سوکھے پتے ہوتے ہیں وہ جل جاتے ہیں ترنت سے. ان کے اندر اگر آگ لگاؤ تو وہ کتنا سیکنڈ بھی نہیں لگتے ہیں. تو اس طریقے سے لگے گا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہوتے ہیں نا کچن میں، اور پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ کہاں روزہ گزر گیا، کیسے روزہ چلا گیا. ٹھیک، ہم بات کرتے ہیں ہم، لیکن یہیں پر ہی ہم اگر کسی دوسرے شخص کو دیکھیں، یا کسی دوسری سسٹر کو دیکھیں، یا کسی دوسری بہن کو دیکھیں، تو فار ایگزامپل کوئی ورکنگ لیڈی ہے نا. تو وہ گھر میں کیا کر رہی ہے؟ صبح بریک فاسٹ بناتی ہے، پھر آفس بھی جا رہی ہے، وہاں جا کے اپنا کام بھی کر رہی ہے، پھر رمضان کی شاپنگ بھی کر کے لے کر آتی ہے، افطار بھی بناتی ہے، تراویح کر رہی ہے، تلاوت کر رہی ہے، ذکر بھی اس کا ہو جا رہا ہے ماشاءاللہ. ٹھیک. پھر ورک آؤٹ بھی لے لیجیے اس کے اندر. اور کیا ہو رہا ہے؟ بچوں کو بھی دیکھ رہی ہیں، ہے نا. اور مان لیجیے کہ ان کے شوہر نے کسی کو دعوت دے دی کہ آج رمضان ہے، تو اس کی بھی سب تیاریاں کر لے رہی ہیں. اتنا ہیپننگ ڈے اور اتنا پروڈکٹیو ڈے، ہے نا. ان کو دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہم بولتے ہیں کہ کیسے اتنا سب آپ مینج کر پاتی ہیں. اور ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ظہر پڑی، وہاں 3 بجتے ہی گئے ہم لوگ کہاں پر؟ کچن میں. اور مغرب. تو ان سے بولتے ہیں کہ ہم کیسے مینج کرتے ہیں. تو کیا ہے، اس کے ٹائم میں برکت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے. تو برکت یہ ہے. برکت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو 25 گھنٹہ ملا ہوا ہے اور آپ کو 24 گھنٹے ملے ہوئے ہیں، ہے نا. کس کو کتنا ملا ہوا ہے سے مطلب نہیں ہے. اسی چیز میں، کم چیز میں زیادہ چیزیں کرنے کو برکت بولتے ہیں. تو پھر ہم کمپیئر بھی کرتے ہیں، تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے ہمارا کہ دن کہاں گیا، کیسے ہوئی چیزیں. ٹھیک ہے. اب یہ سوال دوسرے کا ہے کہ اتنا مطلب ایسا بھی ہے کہ دوسرے کا کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا بابرکت دیا، اور میرا کیوں اتنا بے برکت دیا ہے؟ کیا میں نماز نہیں پڑھتی ہوں؟ کیا میں یہ سب نہیں کرتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، انہوں نے بتایا حدیث میں کہ وقت سکڑ جائے گا جب اچھے اعمال کم ہوں گے. ٹائم ول شرنک جب جو ہے ہمارے گڈ ڈیڈس جو ہے وہ کم ہوں گے.
और जब अच्छे अमाल कम हो जाएँगे और बुरे अमाल बढ़ जाएँगे तो टाइम घटने लगेगा। घटने का मतलब ये नहीं कि 24 घंटे से 23 घंटे का दिन हो जाएगा। बरकत चली जाएगी उस वक़्त से। अभी आजकल देखिए ना, ठीक है, हम पाँचों टाइम की नमाज़ पढ़ते हैं, हम लोग ज़िक्र भी करते हैं, माशाल्लाह आजकल रमज़ान है तो हम लोग तस्बीह बहुत सारी बहनें कुरान की तिलावत सब करते हैं ना। लेकिन हमारे अंदर जो बुरी आदतें हैं वो तो अभी भी है। जैसे कि लालच है किस चीज़ का? कपड़े का। तो हम किसी को अगर मान लो ज़कात दे रहे हैं तो वो हम कपड़े उसको उतने अच्छे से नहीं दिलाएँगे, खुद के लिए बेहतर से बेहतर खरीदेंगे। हम लोग क्या करते हैं? सेल्फिश हैं बहनों, सेल्फिश। जो इंसान सेल्फलेस होता है ना, सेल्फलेस होना आसान नहीं होता है। सेल्फलेस जो इंसान होता है उसकी परवाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद करते हैं। जो दूसरों की परवाह करता है उसे अपनी परवाह करने की ज़रूरत ही नहीं है। किसी को ज़कात देंगे तो कम से कम, या सदका देंगे तो हमारी जेब से क्या निकलता है? चिल्लड़ निकलता है। वहीं किसी ठेले पर अगर हमको जूस पीना होगा तो 50 से 100 रुपए का ग्लास हम लोग पी लेते हैं। लेकिन कोई अगर सिग्नल पे हमसे माँगने आ जाए तो क्या देंगे? 10 का सिक्का, 5 का सिक्का और 2 का सिक्का। तो चिल्लड़ हमारा निकलता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये नहीं कहा है कि तुम कम से कम दो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये कहा है कि जो सदका है वो 1 रुपये का भी हो सकता है। ये यहाँ पर कहीं मेंशन नहीं किया गया कि जो सदका है वो आप 1 रुपया दोगे तो ही मैं वैलिड मानूँगा। उस चीज़ को हमने कि सदका तो जितना कम हो सकता है हम दे सकते हैं। है ना? तो आजकल हम लालची हैं, लालची वाली आदत तो गई नहीं है, तो ये भी तो एक हमारे बुरे अमालों में से है। फिर कंजूसी, कंजूसी जिसको बोलते हैं पेनी पिंचिंग, एक-एक पाई बचा के रखना, देना नहीं किसी को भी। कोई रो रहा है, कोई गिड़गिड़ा रहा है, नहीं देना है। पता है ना, बेहतर सदका वो है जब अपने खुद के खाने की पड़ी हो कि मेरा कल का खाना कैसे आएगा और जितने पैसे हैं वो सब खैरात कर दो। बेहतरीन सदका इसको माना गया है। और कल को जो पैसा आएगा ना, एक जगह मैंने पढ़ा था कि जब आपके माल में कमी हो रही हो ना तो ज़कात देनी चाहिए। जब माल में कमी होती है तो ज़कात दो। उससे क्या होगा? अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको और अता फरमाते हैं। और क्या है, हमारे अंदर जेनरॉसिटी नहीं है, हम लोग शेयर नहीं करते हैं। शेयर नहीं करते मतलब कोई भी चीज़, चाहे नॉलेज भी होगी ना, अब मान लीजिए जैसे यहाँ है, ये तो माशाल्लाह यहाँ तो शेयर ही शेयर हो रहा है। लेकिन अगर किसी को कोई दुआ भी पता चल गई है ना और उससे उस दुआ को फ़ायदा हो रहा है, तो हम लोग बहनों वो भी नहीं शेयर करना चाहते हैं। बाकी चीज़ें, मटेरियलिस्टिक चीज़ें तो बात की बात होती है, हम लोग वो तक नहीं शेयर करना चाहते हैं कि नहीं ये अगर इसको पता चल जाएगा। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के तो प्यारे सभी हैं। तो ना जेनरोसिटी है, ना शेयर करते हैं। तो उसमें 5 वक़्त की नमाज़, है ना? तिलावत कुरान सब है। लेकिन ये जो चीज़ें हमने अपने अंदर डेवलप कर ली हैं, तो बरकत इन चीज़ों से ख़त्म हो रही है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कत्ल है वो बहुत आम हो जाएँगे। कत्ल जो है वो बहुत आम हो जाएँगे। और किसी को कत्ल करना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के काम को अपने हाथ में लेना है, क्योंकि ज़िंदगी और मौत देने वाला सिर्फ़ अल्लाह है। अब यहाँ देखिए, यहाँ डायरेक्ट कनेक्शन बताया गया है टाइम का किससे? बरकत से। किन है ना? टाइम का किससे? टाइम की बरकती का किससे? हमारे अमाल से। तो बुरे अमाल बेबरकत, अच्छे अमाल बाबरकत। मोस्टली लोग क्या होते हैं, अपने वक़्त की कदर नहीं होती है। सब ये सुनने में ऐसे ही लगता है, अरे क्या आज वक़्त के बारे में बताने बैठ गई है, हम तो इतना बिज़ी रहते हैं, ये सब कुछ, है ना? आधे से ज़्यादा लोग ऐसा ही सोचते हैं कि वक़्त की बिल्कुल से कदर नहीं होती है। जब तक चीज़ें डिफरेंट नहीं होनी शुरू हो जाती है ना उनकी ज़िंदगी में, जब तक पछतावा नहीं आता है तो कोई सुधरता नहीं है, और मेरे केस में तो शायद यही था। खैर अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब हिदायत दे दे, है ना? जब तक वे तब तक किसी चीज़, उस चीज़ की वैल्यू ही नहीं होती है। क्योंकि जब हमारे पास सेहत थी तो हम क्या करते थे, हम पढ़ सकते थे तरावी। जब हमारी आंखें ठीक थी तो हम तिलावत कर सकते थे अच्छे से, तरावी पढ़ सकते थे, ज्यादा से ज्यादा नवाफिल पढ़ सकते थे। लेकिन आज सेहत नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये
यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चीज़ और फ़रमाई है कि 2 चीज़ें हैं लोग जिसका फ़ायदा ही नहीं उठाते हैं। एक तो है अस्सेहा यानी कि हेल्थ और फ्री टाइम। हमें टाइम बिल्कुल फ्री मिला है। 24 घंटे में क्या हमने किया है? रोज़ा रखा ठीक, लेकिन रोज़ा सिर्फ़ खाने या पीने का नहीं होता है। फिर उसी में इंस्टा चल रहा है, उसी में सारी चीज़ें चल रही हैं, उसी में रील्स चल रही हैं, अरे रील्स ही तो हैं, तो इस्लामिक रील्स अब मतलब ऐसा होता है ना कि चेंज हो जाता है सब कुछ, तो नाच सुन रहे हैं, उस चीज़ को वो कर देते हैं, क्या कहते हैं रिप्लेस कर देते हैं किसी भी चीज़ से, लेकिन आदतें नहीं छूट रही हैं, आदतें तो वही है ना, आइसोलेशन आइसोलेशन है मतलब रोज़े का ना, खुद को हर चीज़ से जो गुमराह करने वाली है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की राह से, उस चीज़ से खुद को आइसोलेट कर लें, परहेज़ कर लें। तो क्या है कि जब हमारी जो बुरी आदतें सोचिए रमज़ान में भी हैं, तो कैसे बरकत वाला टाइम होगा? टाइम बाबरकत होगा ही नहीं। और बरकत का मतलब जो है ब्लेसिंग होना, ठीक? तो यहाँ पर मतलब क्या है? घंटे तो देखो सभी को 24 मिले हैं, फिर कोई इतना काम कैसे कर लेता है कि वो ऑफ़िस भी जा रही है, सब कुछ कर रही है, ये कर रही है, ये कर रही है ना? और किसी का दिन कैसे शुरू होते ही खत्म हो जाता है, क्योंकि हमारे आमाल नहीं अच्छे हैं। आमाल नहीं अच्छे हैं और आमाल जब बुरे होते हैं तो टाइम क्या होता है, घट जाता है, ठीक? अब जो टेक्निकल डेफिनेशन है बरकत की, टेक्निकल डेफिनेशन है टू बी एबल टू डू मोर विद लेस टाइम, कम टाइम में ज्यादा काम करना, बरकत का मतलब ये होता है, या फिर कम चीज से ज्यादा पाना, है ना? कम में ज्यादा बरकत तो वही चीज होती है ना, एक अब मानिए कि एक एक बहन है, वो 2 घंटे में 1 घंटे में 2 पारा मुकम्मल कर लेती है माशाल्लाह से, ठीक? और वही दूसरी बहन है, तो वो ऐसा थोड़ी ना होगा कि वो 1 घंटे में 6 पारा मुकम्मल कर लेगी, तो ये तो इम्पॉसिबल है ना, ये तो हो ही नहीं सकता किसी भी तरीके से। 1 घंटा तो सबको उतना ही है, सबको 60 मिनट ही मिले हैं। तो यहाँ पर क्वांटिटी से मतलब नहीं है कि वो 2 पारा पढ़ती है तो 6 पारा तो उसका जो है उसकी उसमें बहुत ज्यादा बरकत है। बरकत का मतलब होता है बेहतर। कौन बेहतर करता है कम से कम टाइम में, है ना? कब इसका देखिए हम क्या है एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लेते हैं, चैरिटी। एक इंसान है, ठीक? वो रोज हर रोज 15-15 रुपए देता है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, थ्रू आउट द वीक क्या होता है, 15 रुपए वो चैरिटी में देता है, सदका करता है, ठीक? या ज़कात देता है, ठीक? वहीं पर एक इंसान है जो सिर्फ जुमा के दिन 2000 रुपए जो है वो सदका करता है, तो यहाँ बेहतर कौन है? जो रोज दे रहा है, क्योंकि उसके अमाल मंडे में गए तो या अल्लाह इस बंदे ने सदका किया, अमाल लेकर जाते हैं ना फरिश्ते, ठीक? इट इज नॉट अबाउट कि उसने 15 रुपए दिए या उसने 16 रुपए दिए या उसने 2000 रुपए दिए, ठीक? फिर वो ट्यूसडे में गया वही फरिश्ता, या अल्लाह तेरे इस बंदे ने तेरी राह में निकाला है, फिर वेंसडे को गया कि या अल्लाह इसने तेरी राह में खर्च किया है, तो उसका पूरे 7 दिन और सिर्फ 15-15 रुपए टोटल करें तो कितना हुआ, 105। लेकिन वही जो दूसरा इंसान है वो वहां पर 2000 रुपीज दे रहा था, ठीक? एक दिन में, जबकि उससे काफी ज्यादा अमाउंट, देखिए क्वांटिटी उसकी बहुत ज्यादा है, लेकिन सिर्फ जुमा के दिन वाला फरिश्ता गया और बोला कि या अल्लाह इसने तेरी राह में खर्च किया। तो ये है बरकत का मतलब। बरकत का मतलब ऐसा नहीं है कि 2000 या 105 से मतलब नहीं है। किस तरीके, देखिए उस इंसान ने अपने 7 दिन को यूटिलाइज किया, बेहतर बना लिया उस 7 दिन को। और उसी तरह वहां उस इंसान ने क्या किया, बेहतर तो बनाया लेकिन सिर्फ एक ही दिन को। तो यही है, ये जो चालाक लोग होते हैं ना, जिनको जिनको मतलब माशाल्लाह से आता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मनाना, वो ये काम करते हैं। और वही जानते हैं कि किस तरीके से, जैसे बिजनेस होता है ना, बिजनेस बढ़ाने वाली चीजें होती हैं, तो इसी तरीके से बरकत है। जैसे बिजनेस इंसान का बढ़ता है उसी तरीके से बरकत बढ़ती है। और उसके बरकत बढ़ाने के भी ना टिप्स किसी किसी को पता होता है कि मैं ये करूंगा तो ऐसा होगा, मैं ये करूंगा तो वैसा होगा, क्योंकि हर किसी का बिजनेस नहीं चल पाता है।
बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन तरीके नहीं आते हैं लोगों को और क्या करते हैं, डूब जाते हैं। एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, जो 2000 वाला इंसान है और जो 105 वाला इंसान है, वहाँ तो उसने अपने सातों दिन रजिस्टर कर लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने नाम-ए-अमाल में लिख लिया कि 7 दिन इसने दिया है, माशाअल्लाह। और उसने सिर्फ़ 1 ही दिन लिखा है, हालाँकि उसने ज़्यादा किया, उसका अज्र मिलेगा उसको कि ठीक है वो काम में आ गए, लेकिन 7 दिन और 1 दिन का तो कोई मुकाबला ही नहीं है ना। तो ये हमेशा क्वांटिटी से मतलब नहीं है। कितना बेहतर कोई करता है उतने ही अमाउंट ऑफ द टाइम में, यानी कि टू बी एबल टू डू मोर, ज्यादा बेहतर करना कम टाइम में, है ना। और बेहतर किस चीज से बेहतर, जो नॉर्मली है, जो रेगुलर है। रेगुलर में मान लीजिए, चलिए एग्जांपल इसका आगे दूंगी। ठीक, एक कहावत है जिसमें बोलते हैं कि कुछ लोगों की जिंदगी जिंदगी बहुत ज्यादा लंबी होती है, ठीक, लेकिन बहुत कम उन लोगों की जिंदगी में फ्रूट होता है। तो इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग फ्रूटलेस लाइफ और शॉर्ट फ्रूटफुल लाइफ। यानी कि लॉन्ग है उनकी जिंदगी, लंबी जिंदगी है, ठीक, लेकिन फ्रूटलेस है, कोई फल नहीं है उसके अंदर। और कुछ लोगों की जिंदगी बहुत छोटी है लेकिन फिर भी फ्रूटफुल है। तो इस चीज से क्या समझ आ रहा है कि उन लोगों को पता है किस तरीके से जो है वो की जाती है, तिजारत किस तरीके से की जाती है, और इजाफा अपने टाइम में, अपने अपने इंटेलेक्चुअल में, अपनी जो है अर्निंग में किस तरीके से जो है इजाफा करना। और ये इजाफा वो नहीं है जो आप बिजनेस करते हैं तो आज 20,000 सैलरी थी कि 40,000, ये इजाफा अल्लाह सुबहाना व ताला करते हैं। तो जब वहां से इजाफा आता है ना, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो कम कर सके। हो सकता है आपने अभी बिजनेस खड़ा किया तो वो डूब जाए, लेकिन ये जब अल्लाह सुबहाना व ताला के साथ बिजनेस करेंगे ना, ये वाली जो तिजारत होगी, तो इस चीज को कोई नहीं डुबा सकता। और जब अगर बंदा सिंसियर है, ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ, और वक्त की अमानत जो उसको अता की गई है उसको सीरियसली लेता है, जो मतलब मुझको वक्त मिला है उसको मैं सीरियसली लेती हूँ, तो वो पा सकता है उतना ही जितना कि कोई एक दिन में पाता है, ठीक है। और उसको मिलेगा जितना कि कोई एक वीक में पाता है। समझ रहे हैं। जब किसी इंसान ने अगर अपने वक्त की कदर कर ली और उसे पता चल गया और वो बहुत सिंसियरिटी से कुरान पढ़ रहा है, जिक्र कर रहा है, सारी चीजें कर रहा है, तो वो करेगा तो उतना ही एक दिन में, लेकिन पाएगा कितना, एक हफ्ते की बराबर, है ना। तो क्या है, जोड़ रहे हैं यहाँ पे अमाल कैसे, क्योंकि टाइम जो है वो श्रिंक हो रहा है ना, श्रिंक हो रहा है। तो तिलावत कुरान और ये सब कुछ है, लेकिन आदतें आदतें मैटर करती हैं। इस्लाम में कैरेक्टर कैसा है वो बहुत मैटर करता है। हाउ यू टॉक, किस तरीके से आप किसी से पेश आते हैं, किस तरीके से आप किसी के साथ बिहेवियर रखते हैं, क्या किसी के पीछे आप किस तरीके से बोलते हैं, है ना। अच्छी शख्सियत बनाना इस्लाम का मतलब ये नहीं कि कुरान पढ़ रहे हैं, और वो भी है, रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह है, वो है, ज़रूरी है, लेकिन अखलाक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, ठीक? तो अब ये देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से, अब जैसे कि और एक बंदा है जैसे कि, तो वो लोग जो कुरान पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा सिंसेरिटी के साथ, और एक बंदा रोज़ कुरान पढ़ता है। और एक हफ्ते में 1 बार, तो पूरे हफ्ते में दोनों के पास ही 7 दिन है। एक के अमाल रोज़ जा रहे हैं उसी तरीके से जिसने ज़कात दी थी, रोज़ अपडेट हो रहा है, और एक के हफ्ते में 1 बार जा रहे हैं। तो भर किसका रजिस्टर रहा है अच्छे अमालों से? उसका जो रोज़ कर रहा है, जो रूटीन, देखिए सिस्टर, ये जो पिछला बयान हुआ था वो रूटीन के ऊपर ही हुआ था। तो जब रूटीन में आएँगे ना तो आदतें अच्छी होंगी तो अमाल अच्छे होंगे, और अमाल अच्छे होंगे तो बरकत मिलेगी। तो यहाँ बरकत कैसे है उसके टाइम में? जो रोज़ कुरान पढ़ रहा है, उसने अहद किया है, नियत की है कुरान पढ़ने की, तो सबसे पहले क्या है, नियत की ज़रूरत है कि मैं रोज़ कुरान पढ़ूँगा। तो अल्लाह ने उसका वो टाइम फ्री कर दिया कि मेरे इस बंदे ने मेरे लिए ये टाइम के लिए सोचा है कि मैं इस टाइम कुरान पढ़ूँगा, तो मैंने उसको हर चीज़, हर काम, दुनिया की सारी फ़िक्रों से मैंने उसको फ्री कर दिया। और क्या किया, उसके टाइम में बरकत रख दी। फ्री ही तो, टाइम का फ्री होना ही तो बरकत है ना।
एक लोग वो है कि जो इतना सारा काम कर रहे हैं और एक फ्री ही नहीं हो पाते सिर्फ किचन से, तो टाइम का फ्री होना ही बरकत है। और जो किसी और जो जिसकी नियत है कि हफ्ते में 1 बार है, तो उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उतना ही टाइम अता किया है कि तुमने 1 हफ्ते में मेरे लिए 1 बार टाइम निकाला है, तो तुम उतना ही पाओगे। मतलब तुमने तो ये नियत करके रखी है ना कि मैं 1 हफ्ते में सिर्फ 1 बार पढ़ूँगा, तो तुमको 1 हफ्ते में 1 बार का ही मैं टाइम दूँगा। लेकिन जिसने नियत कर ली, सोच लिया कि मैं रोज़ पढ़ूँगा, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसका वो टाइम फ्री कर दिया। है ना? तो कितनी सिंसियर नियत है, वैल्यू क्या है? वैल्यू टाइम की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बरकत के लिए, अपने वक़्त में, प्लस अच्छे अमाल से बरकत होती है टाइम में। 18 साल में इंसान वो अकम्प्लिश कर लेता है जो 80 साल में नहीं किया होता, है ना? तो इन कोई इंसान 18 साल में वो अकम्प्लिश कर ले रहा है जो किसी ने 80 में नहीं किया, क्योंकि उसने पूरी ज़िंदगी अपने बुरे अमालों में निकाल दी, है ना? तो नियत और अमाल टू डू मोर इन लेस टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करना कम टाइम में, ठीक है? तो यहाँ में 7 चीज़ें जो हैं सुन्नत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिससे साबित होता है कि इन चीज़ों से टाइम में बरकत होती है। इंशाल्लाह उसके बारे में अब हम वो करेंगे, ठीक है? डिस्कस करेंगे। तो पहला है 7 चीज़ें, 7 वेज़ टू इंक्रीज़ बरका इन योर टाइम, ठीक? टाइम टाइम है, अर्निंग है, वेल्थ है, हर चीज़ में किस तरीके से बरकत होती है। तो गेट अप अर्ली, सबसे पहले क्या है कि जल्दी उठना है। जल्दी उठना है और क्या है, स्टार्ट ही अर्ली करना है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा कराम ने दुआ करते हुए सुना कि अल्लाह ब्लेस माय नेशन इन इट्स अर्ली आवर्स, ठीक है? ब्लेस माय उम्मा, किसमें? मॉर्निंग आवर्स में, कि अल्लाह मेरी जो उम्मत है उनको ब्लेस्ड कीजिए, उनके दिन में बरकत डालिए, जब वो सुबह होते मतलब सुबह से ही बरकत डालिए। और बोलते हैं ना फजर के बाद बरकत के फरिश्ते आते हैं घर में, तो ये चीज वहीं से चलती चली आ रही है, रिस्क लेकर आते हैं ना फजर के बाद, और जो सो रहा होता है उसका रिस्क चला जाता है फिर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी जंग के लिए निकलते या अपने साथियों को भी कभी भेजते, तो दिन के शुरुआती हिस्से में सुबह में वो फज्र पढ़ते थे, फिर उसके बाद सुबह के वक्त अपने फज्र की नमाज के बाद दिन को शुरू किया करते थे, और फिर जितने भी कमांड है, जितनी भी कन्वर्सेशन है जंग की, वो सारी चीजें सुबह में होती थी। तो ये तो उस टाइम की बात है, लेकिन अगर हम अभी की बात लेंगे, तो उसमें क्या होगा कि अगर मान लीजिए हम फजर में नहीं उठते, कोई इंसान फजर में उठ के सो नहीं रहा है, ठीक, वो अपना लंच भी बना सकता है, अपना ब्रेकफास्ट भी बना सकता है, यहाँ तक कि शॉपिंग भी करके जा सकता है अपने रात तक की। लेकिन जो इंसान 8:30 पर उठ रहा है, 9 बजे उसका ऑफिस है, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, है ना? तो जल्दी उठना भी जरूरी है। जल्दी उठोगे तो बरकत किसके टाइम में? जो जल्दी उठ रहा है। और कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कसम खाते हैं 2 वक़्त की। वल फज्र, सूरह फज्र में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कसम है मुझे सुबह की, और वल अस्र, है ना? अस्र की खाते हैं। अस्र जो होता है शाम के वक़्त की, कसम है शाम की जब वो ढल जाती है, ठीक है? इसका पूरा तर्जुमा इस तरीके से। तो वल फज्र अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सुबह की कसम खाई है यहाँ पर। और ये कस्में ऐसी नहीं है हम लोग नहीं खा सकते, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिन और रात बनाया है, तो ये कस्में सिर्फ अल्लाह के लिए हैं। अल्लाह अपनी क्रिएशन की कसम खा सकते हैं, हमारे लिए कोई कसम नहीं आई है। तो ऐसा ना हो कि हम लोग भी इस चीज़ से कस्में खाना लग जाएँ, तो ये क्लियर करने के लिए था यहाँ पर, ठीक? तो या तो लोग उठ रहे होते हैं फज्र में, और या फिर सब काम समेट कर रख रहे होते हैं असर में, ठीक है? इस वजह से, क्योंकि लोग सुबह में उठ रहे होते हैं और असर में क्या होते हैं, सारे काम जो है समेट कर रहे, तो अल्लाह ने इन दोनों टाइम में स्पेशल बरकत अता की है। तो पहला क्या है, हमको सुबह जल्दी उठना है, और जल्दी गेट अप बिफोर द सनराइज, दैट मीन्स दैट इज फज्र। फज्र में इंशाल्लाह हम लोग उठेंगे, ठीक? दूसरा है अवॉइडिंग सिंस एंड ड्रामा। अब ये ड्रामा यहाँ पर पाकिस्तानी या कोरियन ड्रामा नहीं है, सॉरी फॉर द जोक। अवॉइडिंग सिंस, ठीक? सिंस का मतलब हुआ गुनाह, गुनाहों और ड्रामों से बचना, गुनाहों से और फिजूल चीजों से बचना। ड्रामा यहाँ पर फिजूल चीजों के लिए यूज किया गया है। तो गुनाहों से अब कैसे बचा जाएगा, ठीक है?
तो इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला जो थे, जो इमाम शाफ़ी के साथ रहा करते, तो इमाम शाफ़ी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत ज़्यादा वो बख्शी थी ना, वो बहुत ज़्यादा जीनियस थे, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल थे। तो जो इमाम शाफ़ी के उस्ताद थे, उन्होंने एक दिन उनको बुलाया और कहा कि शाफ़ी, तुम्हारे अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक नूर डाला है और इस चीज़ को अपने गुनाहों से काला ना करने देना। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम्हारी अपब्रिंगिंग इतनी अच्छी हुई है कि तुम 8 साल में इतना सब कुछ किए। उन्होंने बोला कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या किया, एक नूर दिया है, तुम्हारे दिल के अंदर रोशनी डाली है ना? और वो हर किसी से आगे थे, बहुत आगे थे। मतलब उन बच्चों में से थे जिन्होंने मल्टीपल वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। इमाम शाफ़ी को बहुत, बहुत ज़्यादा जो है जीनियस बोला जाता है, दिमाग बहुत था उनके पास। तो उसको गुनाहों से काला ना कर देना। सुभान अल्लाह! तो जब उन्होंने ये चीज़ बोली, तो ये चीज़ क्या है? जो अल्लाह ने नूर दिया है वो गिफ्ट है। और वो गिफ्ट जो है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो नूर दिया है वो गिफ्ट है। वो गिफ्ट किस चीज़ से काला हो रहा है? गुनाहों से। तो गुनाहों से तो कितना ही बचना है ना बहनों, कि देखो जो अल्लाह ने हमको गिफ्ट दिया है वो भी काला हो रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला छीन लेते हैं उस चीज़ को। अगर हम उस चीज़ को नहीं रियलाइज़ करेंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या करते हैं? छीन लेते हैं। और बिल्कुल से बरकत नहीं रहती है उस चीज़ में, उस गिफ्ट में बरकत नहीं रहती है ना? अब क्या है कि मतलब लोगों को ये समझना है कि तकवा क्या होता है, अल्लाह से डर को समझना है, गुनाहों से परहेज करना है और अपने लिए बरकत का इनाम पाना है। ठीक, ये सब कुछ हमको करना है। ठीक, तो अब ये है कि यार यहाँ पे मतलब गुनाहों से बचेंगे तो किस तरीके से, मतलब यहाँ बरकत कैसे हो गई। ठीक, अब भी ये चीज मैं क्लियर करती हूँ। तो उनका ये क्या है, जब आप गुनाह करते हैं, तो गुनाह करते हैं तो आप मतलब मान लीजिए ड्रामा है, ड्रामा को लेते हैं यहाँ पर। आपने कोई गुनाह वाली चीज़ की, आपके मम्मी-पापा को वो नहीं पता है। वो मोस्ट ऑफ द गर्ल्स जो हॉस्टल में जाके रहती है, उनके बारे में बात कर रही हूँ कि यू डिड समथिंग और आपको आपको उस मतलब गुनाह वाली चीज़ है। मान लें बाहर चले गए, क्लब चले गए, कुछ भी हो गया, तो उसमें क्या होता है कि बाहर गए, घरवालों को नहीं पता है। तो नाउ अभी आपके दिमाग में एक गुनाह किया था, उसको अम्मा-अब्बा से छुपाना है, ठीक? तो क्या हो रहा है आपके दिमाग में, यू आर वरीइंग अबाउट दैट थिंग। क्या हो रहा है? एंग्ज़ायटी हो रही है। उस एंग्ज़ायटी से क्या हो रहा है? स्ट्रेस हो रहा है ज़िंदगी में, और उस स्ट्रेस से क्या हो रहा है कि मेसी सिचुएशन पैदा हो रही है, और जहाँ मेसी सिचुएशन पैदा हो रही है, तो वहाँ ड्रामा की जगह ही है। मेसी सिचुएशन जो है, फिज़ूल चीज़ें आ रही हैं। तो इतना टाइम जो आपने यूज़ किया किस चीज़ के गुनाह करके, उस चीज़ के बारे में सोचने में, एंग्ज़ायटी में, इन सब चीज़ों में, तो इससे अच्छा है ना उससे बच जाएँ और वो टाइम किसी और जगह यूज़ किया जाए, है ना? ठीक? अब मान लीजिए किस तरीके से ये चीज़ें हम करेंगे, ठीक है? अब मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा तोहफ़ा है कि या तो मतलब मैं स्पीच देती हूँ या फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। मुबीन अपी है, वो भी स्पीच देती हैं, तो हमने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ कर लिया है, ठीक? या वो अच्छी दुआ कराता है कोई इंसान, ठीक? तो क्या है यहाँ पर, तो ये अल्लाह के दिए हुए तोहफ़े हैं और हमें क्या करना है कि शुक्र करना है अल्लाह का इस चीज़ में, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि हम ही स्पेशल है या सिर्फ़ मैं स्पेशल हूँ। आपको उस चीज़ को तराशना है अपने अंदर कि अल्लाह ने किसी को खाली नहीं बनाया। अल्लाह ने हर किसी को अपने दीन का काम लेने के लिए बनाया था। हम लोगों ने क्या किया है, उसको जैसे इमाम शाफ़ी के उस्ताद ने बोला था ना, हम लोगों ने उस चीज़ को काला कर दिया है जो हमारे अंदर की रोशनी है। इसलिए हमको पता ही नहीं चलता है कि हमारा तोहफ़ा क्या है। अब मान लीजिए किसी की ड्राइंग अच्छी है, ठीक? तो वो क्या कर रहा है, एक इंसान कुरान की आयतें लिख रहा है और एक इंसान क्या कर रहा है, तस्वीरें बना रहा है, ठीक? तो कौन अपने टाइम को सही से यूटिलाइज़ कर रहा है, और वो बरकत ही बरकत वाला टाइम है जिसमें वो कुरान की आयतें लिख रहा है ना?
और हम लोग क्या करते हैं, गुनाह क्या करते हैं, जो हमें गिफ्ट्स मिला, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमको गिफ्ट दिए, जो तोहफे दिए हैं, क्या करते हैं, उस चीज का खात्मा कर देते हैं। अब बहुत सी बहनों से पूछा जाए कि तुम कोई एक ऐसी चीज बताओ जो तुमको लगता है तुम दीन के लिए कर सकती हो। अब मान लीजिए किसी की ड्राइंग अच्छी है तो बोलेगी कि मैं आयतें लिख सकती हूँ। किसी के कोई अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है तो बोलेगी कि मैं स्पीच दे सकती हूँ। कोई बहस अच्छे से कर सकता है, बहस करना भी अच्छी चीज है, तो वो डिबेट, वो बोलेगी कि मैं डिबेट अच्छे से कर सकती हूँ, है ना? तो ये सब तोहफे हैं, लेकिन ये सब हमें दीन के काम में लेकर आने थे, है ना? तो क्या है, गुनाह जो है क्या करते हैं, हमें गुनाहों से बचना है, और गुनाहों से क्या होता है, और जो नूर है ना, वो जो है खत्म हो जाएगा। अगर हम गुनाह करते हैं तो, और जब गुनाह करेंगे तो क्या होगा, हमारे टाइम में बरकत नहीं रहेगी। और बरकत टाइम कैसे मिलेगा, जब हम गुनाहों को और ड्रामा को, यानी कि फिजूल की जो सिचुएशन हमने क्रिएट की है खुद से, उससे हमें बचना है। ठीक। तो अगर हमें सुकून, सुकून से रहना है, तो हम एक तो फालतू काम नहीं करेंगे, ड्रामा नहीं करेंगे, फिजूल चीजें नहीं करेंगे, ऐसी चीजें जिसके बारे में हम पूरे दिन सोच रहे थे, यार मैंने ये काम कर दिया था और अब क्या होगा, अब तो वहां पता चल जाएगा, वो पूरा दिन हम तिलावत में लगा सकते थे। पूरे दिन में कितनी बरकत होती। वो 24 घंटा लिखा जाता उस रजिस्टर में कि अल्लाह, ये लड़की ज़िक्र कर रही थी पूरे दिन आपका, और वहाँ क्या लिखा गया कि इसने गुनाह किया था, और अभी भी इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको उसी चीज़ में डाल दिया कि ठीक है, तुमने गुनाह किया था, तुम उसी में रहो। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला वही है अपने बंदों के लिए, जो लोग सोचते हैं। मैं सोचती हूँ ना कि मेरा रब ऐसा है कि मेरे लिए हमेशा है, यहीं पर ही है। अभी मैं बैठी हूँ तो वो मुझे ही सुन रहा है, तो वो सुन रहा है। और अगर मैं सोचती हूँ ना कि अल्लाह, अरे अल्लाह तो सुनते ही नहीं है मेरी, ऐसा नहीं होता है, किसी और की सुनते हैं या ऐसा होता है, तो वो आपके लिए वैसा ही है। जैसा आपने सोच लिया वैसा ही है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके लिए। ठीक है? तो हमें क्या करना है? सिंस से बचना है और ड्रामा अवॉइड करना है। क्या? फिज़ूल की जो चीज़ें हैं वो अवॉइड करनी है, उससे हमारे टाइम में बरकत होगी। तो देखिए, वो ये तो हदीस से ही साबित है कि जो बुरे अमाल हैं वो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, आपके दी हुई तोहफ़े वाली चीज़ को खा जाते हैं, और तोहफ़े वाली जो चीज़ है उससे दीन का काम नहीं होगा, और जब दीन का काम नहीं होगा तो टाइम में बरकत नहीं होगी। ठीक? अब नंबर 3 है स्पेंडिंग टाइम विद योर फैमिली। तो अब यहाँ पर ये आ जाएगा कि कुछ करने का टाइम तो है नहीं, तो अब फैमिली को किस तरीके से मैं टाइम दूँ, है ना? ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 1 मिनट का टाइम मेरे पास है नहीं, और यहाँ ये बोल रही हैं कि अपनी फैमिली के साथ में टाइम, तो फिर कौन कौन टाई अप देखेगा? कौन जो है मेरे घर का खर्चा कौन चलाएगा? अगर मैं अपनी फैमिली को बैठकर ही टाइम देने लगूँ, तो किस तरीके से मेरा मेरा खाना कौन पकाएगा? है ना? किस तरीके से मेरे बाकी के काम होंगे? ये तो, इससे तो मुझे नहीं लगता कोई बरकत आने वाली है, ठीक? मेरे टाइम में। ये होता है, ये लोग सोचते हैं ज़्यादातर ऐसा, ठीक? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अपनी ज़िंदगी में रिस्क में बरकत चाहते हैं, उसे चाहिए कि अपनी फैमिली से अच्छा रिलेशनशिप रखे, अच्छा सुलूक रखे। अपने घर वालों से अच्छा सुलूक, यानी कि अब यहाँ देखिए, वहाँ टाइम में बरकत थी। टाइम में बरकत कैसे हो रही है कि जब गुनाह नहीं करेंगे तो उस चीज को रिप्लेस कर देंगे किसी अच्छी चीज से, तो वहाँ टाइम में बरकत हो रही है। और यहाँ रिस्क में बरकत देखिए कैसे, जब आप अपनी फैमिली के साथ, अपने घर वालों के साथ अच्छा सुलूक कर रहे हैं, और अच्छा रिलेशनशिप आपने मेंटेन किया हुआ है। और ये आजकल की बहुत गलत चीज है कि दोस्तों को सिर्फ दोस्तों को टाइम देना, और वो इतनी गलत चीज़ों में मुब्तला करते हैं ना, और दोस्त आजकल इसीलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि वो हर चीज़ पे हाँ बोलते हैं। गो फॉर द आउटिंग, ठीक है, सिगरेट पी लो, ठीक है, ये कर लो, हाँ, ये कर लो, मम्मी-पापा समझते नहीं हैं। नहीं, दोस्त संगति का बहुत बुरा, कंपेनियनशिप बहुत अच्छी होनी ज़रूरी है। और अपनी फैमिली से क्या रहता है, घर में आएँगे तो क्या होगा, घर वालों से अच्छे से बात भी नहीं करते हैं। अम्मा कहेंगी खाना खा लो, अरे नहीं मैं बाहर से खाकर आया हूँ, या मैं बाहर से खाकर आई हूँ। ये है, तो कैसे, तो रिस्क में बरकत नहीं रहती है जब आप अपनी फैमिली से जो है अच्छे से बात नहीं करते हो।
ठीक। और अब मर्दों का क्या है कि अगर फैमिली को टाइम देने से रिस्क आएगा तो घर के बाहर बाहर ही ना जाए, है ना? मर्द ऐसा बोलेंगे कि भाई अब मैं फिर पूरे दिन अपने घर में ही बैठा रहूं, अगर फैमिली को टाइम देने से रिस्क आता है तो। लेकिन ये वर्ड तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के है ना, तो आप झुठला के मतलब आप किसको वो कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ बोल रखा है कि जो जो अल्लाह का डिजाइन है स्पेंड करना टाइम अपनी फैमिली के साथ, तो आएगा ना, जब जब अल्लाह ने बोल दिया तो वो चीज होनी है मतलब होनी है। अपनी फैमिली को टाइम दे, अपने घर वालों को टाइम दे, उस अपने रिलेशनशिप सुधारे उनके साथ। उससे क्या होगा, आपके टाइम में बरकत होगी। किस टाइम में बरकत होगी, प्लस किस चीज में बरकत होगी, आपकी रिस्क में बरकत होगी। सुभान अल्लाह। और हमें यकीन है ना कि जो अल्लाह ने कहा है वो होना है, तो हमें रिजल्ट जो है वही मिलेगा। ठीक है। और अगर किसी के माँ-बाप नहीं है तो अपनी बीवियों से स्टार्ट करें, अपनी बीवियों को टाइम देना शुरू करें, अपने शौहर से स्टार्ट करें, अपने बच्चों से स्टार्ट करें। आजकल के माँ-बाप ने इतना ज़्यादा बच्चों को डरा दिया कि बच्चे कुछ नहीं होते हैं। और एक ये बहुत गलत चीज़ है मेरे मुआशरे की या हम लोग की, या शायद मेरे घर की भी ये चीज़ है। ज़्यादातर मुस्लिम फैमिलीज़ में ये होता है कि कोई बच्चा आया अपने इमोशन की बात करने अम्मा-अब्बा से, अगली लड़ाई में अम्मा-अब्बा उसको इतना ह्यूमिलिएट करेंगे ना उस इमोशन की लड़ाई को लेकर, कि वो बंदा अपनी बात ही नहीं करेगा नेक्स्ट टाइम से। उसने आपको अपना माँ-बाप समझकर कोई बात बताई है कि अम्मा देखो ये चीज़ मुझे हर्ट करती है, तो आपको खुश होना चाहिए कि या तो फिर वो अल्लाह को बताना शुरू करेगा तो वो तो बेहतर ही है, लेकिन आप माँ-बाप हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कल को उसने कोई गलत काम कर दिया है तो आप क्या करेंगे? उसी चीज़ को लेकर उसको ह्यूमिलिएट करते हैं कि उस दिन तो बहुत तुम रो रहे थे उस काम के लिए। उस दिन आए थे ना ऐसे, ये कभी नहीं करना, ह्यूमिलिएशन कभी नहीं करना चाहिए किसी को। अपनी फैमिली को टाइम दें। एंड द बेस्ट ऑफ यू आर दोज़ हू गिव टाइम टू देयर फैमिली। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला है कि तुम में से बेहतर लोग वो हैं जो अपनी फैमिली को टाइम देते हैं। और बरकत आती है जब आपके घर वाले आपसे खुश होते हैं, अल्लाह ब्लेस करता है। अल्लाह क्या करते हैं उस इंसान को जो है, मान लीजिए आप वफ़ात पा गए और आपने अपनी फैमिली को इतना अच्छा टाइम दिया है, तो वो आपके नाम का जो है सदका कर रहे हैं, मरने के बाद भी आपके नाम से जो है सवाब पहुँचा रहे हैं आपको, है ना? आपने क्या किया, एक गुड मेमोरी आप छोड़ कर गए हैं उनकी यादों में, ठीक है? जिसके साथ आपने अपना टाइम स्पेंड किया, तो ये चीज़ सोचिए कितनी खूबसूरत ये चीज़ है। ब्यूटीफुल वे ऑफ रिमेम्बरिंग यू, है ना? और वो क्या करेंगे, आपके रब का सदका देंगे। और मान लीजिए वफ़ात भी नहीं पाए हैं, तो कोई अगर आप अपना सलूक कर रहे हैं ना, तो मेरे अब्बा ऐसे हैं, पहले तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या किया कि आपके लिए आपकी बरकत का ज़रिया बना दिया। आपने एक किया, आपकी औलाद ने आपको 2 दिए। लेकिन क्या होता है कि जैसा सलूक हम करते हैं, वैसा औलाद हमारे साथ करती है ना? अब फोर्थ क्या है इसके अंदर, एक्ट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो थर्ड था कि अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने से रिस्क में इजाफा, यानी कि रिस्क में बरकत आती है। एक्ट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड यानी कि शुक्रगुजारी करना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि इफ यू आर ग्रेटफुल आई विल इंक्रीज यू। मैं तुमको, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुमको उससे ज्यादा अता फरमाऊंगा। ठीक है। तो ये फेथ के लिए ही तो है ना? लेकिन उससे क्या है, पर्टिकुलर उस चीज के लिए है कि जिसके लिए आप शुक्र करते हैं। पता है आपको, जिस चीज के लिए आप शुक्र करते हैं ना, अल्लाह उसमें इजाफा करते हैं। मान लीजिए कि आपने किसी चीज के लिए बोला, जैसे कोई सा बिजनेस है कि अल्लाह मेरा बिजनेस हो गया, तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरा लाख लाख शुक्र है, उस चीज में इजाफा होगा। अब एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई इंसान बहुत परेशान हाल था,
उसको जॉब नहीं मिली, नहीं मिली, और अचानक से एक जॉब मिलती है, और वो 20,000 रुपए की, बहुत नीड थी उसको, और वो जिस दिन से जॉब पर जाता है, सुबह जब जाता है जॉब पर तो सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह, शाम को आता है जॉब से तो अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों रास्ते में उसने क्या कर रखा है, मान लो आधे आधे घंटे का रास्ता है तो अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह पढ़ रहा है। क्यों पढ़ रहा है? क्योंकि उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो जॉब दिलाई है, जब उसको बहुत ज्यादा जरूरत थी उस चीज की। तो अब उसकी जो है किस चीज में इजाफा होगा, उसकी जॉब, उसकी सैलरी में इजाफा होगा। अब सैलरी में इजाफे का मतलब ये नहीं प्रमोशन, प्रमोशंस भी होते हैं, मेरिकल्स हो जाते हैं जैसे कि, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसकी सैलरी अगर 20,000 थी तो वो 40,000 हो जाएगी। बरकत का मतलब क्या है कि जब बस उसने क्या किया, हर दिन सिर्फ शुक्र कर रहा है, या अल्लाह मुझे कितनी जरूरत थी, या अल्लाह तूने सुन ली, या अल्लाह मतलब मैं बहुत ज्यादा तेरा मतलब शुक्रिया अदा करता हूँ, ठीक ये है। तो यहाँ क्या है ना, फेथ बढ़ रहा है आपका, क्या हो रहा है, फेथ बढ़ रहा है। एक चीज तो ये हो रही है कि अल्लाह ने मेरी सुन ली, इसका मतलब ये है कि जो मैं मांगता हूँ अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरी भी सुनते हैं, वो हर किसी की सुनते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, एक तो ईमान पुख्ता हो रहा है इस चीज से, जब अल्लाह ने आपको कोई चीज अता फरमाई है, ठीक, ईमान पुख्ता हो रहा है। लेकिन वो जो 20,000 की सैलरी थी उसमें बरकत कैसे आई कि लोगों के उस 20,000 की सैलरी में सिर्फ 2 काम होते हैं, और आपकी उस 20,000 की सैलरी में 5 काम अल्लाह सुब्हानहू व तआला करवा देंगे। तो ये बरकत होती है, इसको बरकत कहते हैं। बरकत का मतलब ये नहीं कि 20 से 40 सैलरी हो गई, है ना? 20 से 40 सैलरी का मतलब नहीं है। लोगों के 20,000 में सिर्फ 2 काम हो रहे हैं, या तो सिर्फ वो रेंट दे रहा है, और सिर्फ खाने का दे रहा है, या आने-जाने का दे रहा है। लेकिन यहाँ पर वो सेव भी कर ले रहा है, क्या कर रहा है, अपने घर पर भी भेज दे रहा है, अपना रहना-खाना भी कर ले रहा है ना? और तोहफ़े भी दे रहा है, और ज़कात भी दे रहा है। इतने काम हो जा रहे हैं उस 20,000 में, क्यों? क्योंकि वो सिर्फ शुक्र अदा करता है अल्लाह का। तो जब आप शुक्र अदा करते हैं तो जिस चीज के लिए शुक्र अदा करते हैं उसमें बरकत होती है। अब चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो कुछ भी चीज हो, चाहे आपके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कोई भी चीज अता फरमाई हो, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो जूता हो, हर चीज, जिस चीज के लिए आप शुक्रिया अदा करेंगे उस चीज में इजाफा होगा ही होगा, क्योंकि ये अल्लाह का वर्ड है, अल्लाह के कलाम है ये, कि इफ यू आर ग्रेटफुल आई विल इंक्रीज यू, यानी कि अगर तुम शुक्रमंद रहोगे तो मैं तुमको दूंगा, मैं बढ़ोतरी करूंगा तुम्हारी चीजों में। तो क्या करना है, बरकत के लिए हमको क्या करना है, हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करना है। तो पहली चीज क्या थी, हमें जल्दी उठना है, तो हमारे टाइम में बरकत हो गई, है ना? दूसरी चीज क्या थी, दूसरी चीज क्या थी बहनों? अच्छा, मैं खुद भूल गई हूँ। हाँ, गुनाह नहीं करने, गुनाह नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जो अच्छा काम है, गुनाह से तो वैसे भी बरकत में कम होती है, तो हमको बरकत बढ़ाने के लिए क्या करना है, गुनाह से बचना है, ड्रामा से बचना है। जो फिजूल चीजें हम कर देते हैं ना, और सारा टाइम उसमें वेस्ट कर देते हैं, तो उससे टाइम में हमारे बरकत आएगी। फिर अपनी फैमिली के साथ रिस्क में बरकत के लिए अपनी फैमिली को टाइम दें, ठीक। और किसमें बरकत के लिए, जिस और ये तो किसी में भी नहीं है ना कि किसी एक पर्टिकुलर चीज में, अब आप मान लीजिए सैलरी के लिए बोल रहे हैं तो उसमें इजाफा होगा, ठीक। कुरान के लिए बोल रहे हैं तो आप वो ज्यादा पढ़ पाएंगे, ठीक। और पढ़ाई के लिए बोल रहे हैं तो आप और ज्यादा अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। किसी भी चीज के लिए जब आप शुक्रिया अदा करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसमें बरकत ही बरकत दे देता है, बहुत इजाफा कर देता है। अगर आप हेल्थ के लिए ग्रेटफुल है, हेल्थ सेहत के लिए है कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि मैं खड़े होकर तरावी पढ़ पाता हूँ या पढ़ पाती हूँ या अल्लाह, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी हेल्थ अच्छी करेंगे, ठीक है। और सदका, सदका का मतलब ही होता है ग्रेटिट्यूड विद वेल्थ। सदका, सदका का मतलब क्या होता है कि आप जो दे रहे हो तो आप अल्लाह को शुक्रिया अदा कर रहे हो कि अल्लाह देखो मेरे पास इतना है कि मैं दे रहा हूँ। और सदके से हमेशा चीजें बढ़ती है, जक़ात और सदके से बहुत ज्यादा इजाफा होता है, ये चीज याद रखिएगा। जक़ात और सदके ये आजमाई हुई चीजें हैं बहुत से लोगों की, मेरी भी, बहुत बहुत इजाफा होता है। और शुक्र करने से जितना शुक्र करें, जितना शुक्र करें,
उतना ज़्यादा पाएँगे, ठीक? तो टाइम यहाँ पर कैसे आता है? ठीक? तो यहाँ पर मतलब कि टाइम में कैसे इज़ाफ़ा हो रहा है यहाँ पे कि अल्लाह का शुक्र करने में लगाया, ठीक है? खुद से अपनी चाहत से क्या किया कि मुझे जॉब के लिए था वो एग्ज़ाम्पल जो लेकर चल रहे हैं हम लोग जॉब का, अपनी चाहत से मैं वो इंसान कर रहा था ना आते टाइम, जाते टाइम अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है? अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र बढ़ा दी थी क्योंकि वो शुक्र किया करते थे। देखो सुभान अल्लाह मतलब उम्र भी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि अल्लाह को उनका शुक्र करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। सोचो, सोचो मतलब उम्र बढ़ रही है, सेहत बढ़ रही है, जॉब जो है हो सकता है प्रमोशन हो जाए, कुछ भी मिल सकता है, लेकिन शुक्र है ही नहीं हमारे अंदर नहीं है बिल्कुल से, हम लोग नहीं करते हैं शुक्रिया अदा। और तकब्बुर इतना है कि अरे आई वाज़ द एक्सीलेंट पर्सन तो मुझे तो मिलनी ही थी ये नौकरी या ऐसा होना ही था, मैं डिज़र्विंग कैंडिडेट था या थी ये सब कुछ। है ना? और ये मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कि सिर्फ़ कार्ड स्वाइप कर दिया सदके के लिए और किसी को दे दिए 1 लाख रुपए या 1000 रुपए किसी को दे दिए, ठीक है? और अब बैठे हैं कि हाँ, बरकत होगी मैंने 2000 रुपए दे दिए। चाहत बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए। जब आप चाहते हैं ना तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहता है। ठीक है? टाइम, वक़्त, नियत, एफर्ट्स 2000 नहीं चाहिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला को कुछ नहीं चाहिए, ना तुम्हारे सजदे, ना तुम्हारी तिलावत, हमें उसकी ज़रूरत है, हमें उसकी ज़रूरत है। तो क्या है कि ऐसा नहीं कि बस कार्ड स्वाइप कर दिया और एक नोटों की गड्डी निकाली और दे दी और अब बस बरकत का वो वेट कर रहे हैं कि बस आज तो 2000 रुपए दिए, अब 2 लाख रुपए आ जाएँगे, ऐसा नहीं होता है ना? ऐसा नहीं होता है। सिंसियरिटी सिंसियरिटी कितनी है आपके अंदर? और यही है ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या करेंगे, अब हमारे अमालों को क्या करेंगे, तोलेंगे। अल्लाह ने कभी नहीं कहा कि मैं गिनूंगा। तो तोले भार अल्लाह को पसंद है, दिल दिल की गहराइयों से गहराई अल्लाह को पसंद है। ये नहीं कि काउंट कर लिया, अरे इसके 1000 काउंट नहीं होगा, तोले जाएंगे। जो चीज जितनी भारी होगी, अब किसी की एक नमाज का जो है नफिल से जो होता है भारी होती है नमाज, और हम लोग ज्यादातर नफिल छोड़ देते हैं। नफिल से भारी होती है नमाज का ना, भार बढ़ता है। जितने आप नफिल पढ़ेंगे तो उनसे क्या होगा, इजाफा होगा उस चीज में। ठीक, जो टाइम अच्छी जगह यूज हुआ उस टाइम में बरकत, और जिस चीज के लिए हुआ उस चीज में भी बरकत। अब ये देखिए, जो टाइम अच्छी जगह यूज हुआ यानी कि मतलब मैंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र व हम्द किया, ठीक है? तो क्या हो रहा है कि बरकत आ रही है किस चीज में, टाइम में भी बरकत आ रही है क्योंकि मैं पूरे टाइम अल्हम्दुलिल्लाह बोल रही हूँ, और जिस चीज के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बोल रही हूँ उसमें भी बरकत आ रही है। सुभान अल्लाह। तो है ना बिजनेस, है ना कितना अच्छा ये कि जो चीज जिस चीज के लिए बोल रहे हैं कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मुझे मिल गया, जो चीज ऑलरेडी मिली हुई है उस चीज के लिए शुक्रिया अदा करने में क्या बुराई है। उसी चीज के लिए मैं बोल रही हूँ, "या अल्लाह आपका लाख लाख शुक्र है", और उसी चीज में और इजाफा। कितना ज़्यादा ये चीज़ मतलब अच्छी है ना, कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है, कितना मतलब वो है एकदम से। कहीं घाटा नहीं है, सिर्फ फायदा ही फायदा है, ठीक है? डेली रिसाइटेशन ऑफ द कुरान, रोजाना तिलावत कुरान करना, ठीक है? इससे कुरान से बहुत बहुत ज्यादा वो आती है, बरकत आती है। कुरान तो छोड़ना ही नहीं है, कुरान नहीं छोड़ना है बिल्कुल से। और अगर बहनों एक पेज ना पढ़ पाओ तो एक आयत पढ़ा करो, सिर्फ एक आयत। कुछ एक आयत से शुरू करोगे ना, तो जब एक कदम बढ़ाओगे ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला 10 कदम आता है तुम्हारी तरफ, तो 10 पढ़ने लग जाओगे। सिर्फ एक आयत से शुरू करो। जो बहनें नहीं पढ़ती हैं, एक आयत से शुरू करें, और कोशिश किया करें कि मायने से पढ़ें। तो उसमें क्या होगा ना, पता चलती हैं चीजें। हम किसी को पता ही नहीं क्या ज़करिया अलैहिस्सलाम का किस्सा था, क्या मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा था, क्या दाऊद अलैहिस्सलाम का किस्सा था, क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, किसी को कुछ पता ही नहीं है, बस पढ़ते चले जा रहे। नहीं, आपको सवाब मिलेगा जो आप रिसाइटेशन कर रहे हो उस चीज का, लेकिन खुद समझना भी तो है ना। कैसे अपनी जिंदगी में चेंज लाओगे जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सबने छोड़ दिया था। आज हमको सब छोड़ देते हैं ना, तो हम कहते हैं कि मेरा तो कोई है ही नहीं, कोई भी नहीं है। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद दादा सबने कम्युनिटी से उनको बाहर कर दिया था। वो अलग सोचो, किसी का बाप दादा उनको निकाल दे,
हमारे पापा हमको घर से निकाल देंगे तो क्या बीतेगी उस बच्चे पे, और छोटे थे वो उस टाइम पर। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला बोलते हैं कि कोई इंसान जब अकेला होता है तो उसके सबसे ज़्यादा करीब मैं होता हूँ। ये हमको पता कैसे चलेगा, जब हम तर्जुमे के साथ चीज़ें पढ़ेंगे, है ना? जब उनको आग में फेंका गया तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वक़्त रोक दिया उनके लिए। जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेज दिया वहाँ पर। क्योंकि वो नबी थे। सोचो, अल्लाह वहाँ पर होता है, और जब अकेले होते हो ना, जब खुद को अकेला महसूस करते हो, और जब अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी से खुश होता है ना, तो वो उसको अकेला करता है। कि अकेले में जो दुआएँ होती है, अकेले में जो तिलावत, ऐसा होता है ना, कभी-कभी हम लोग नमाज़ पढ़ रहे होते हैं और रोना चाहते हैं नमाज़ में, या अच्छे से नमाज़ पढ़ना चाहे तो थोड़ा अनईज़ी फ़ील हो जाता है ना? अनईज़ी सा लगता है ना, अरे यार अब ये आ गया तो इसके सामने क्या रोना है, क्योंकि अल्लाह ने हमको बनाया है, उसके सामने तो रो ही सकते हैं ना जिसने हमको बनाया है। तो डेली कुरान पढ़ना है, ठीक? और स्पेसिफिकली सूरह बकरा जो है वो प्रोटेक्शन के लिए होता है ना, बकरा प्रोटेक्शन के लिए पढ़ा जाता है। ठीक है, हम सब जानते हैं कि सूरह बकरा हर चीज़ से हिफाज़त करता है, ठीक? तो उसका क्या है कि मतलब कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुँचा सकती है, चाहे वो रूहानी हो या कोई इंसान हो, तो कोई चीज़ जो है नुकसान आपको नहीं पहुँचा सकती है। सूरतुल बकरा इसलिए पढ़ी जाती है। तो ये बरकत कैसे, टाइम में कैसे इससे बरकत मिलेगी? सूरह बकरा बहुत लंबी सूरत है, लॉन्गेस्ट सूरत जो होती है कुरान की वो है सूरह बकरा। तो लॉन्गेस्ट यानी कि जितना लंबा टाइम आप किस चीज़ में कर रहे हो, कुरान की तिलावत करने में यूज़ कर रहे हो, उतना ज़्यादा क्या है कि आपका जो टाइम है वो ब्लेसिंग हो रहा है, बरकत आ रही है टाइम में आपके। और जो शख्स रोज कुरान की तिलावत करता है उसके टाइम में बरकत होती है। स्पेशली कौन सा, ये बताया गया सूरतुल बकरा, ठीक। अब सिक्स्थ क्या है, जिक्र। जिक्र करे अपने रूटीन में, कितना रोजमर्रा के जो मामलात होते हैं ना, रोजमर्रा के मामलात क्या है, देखो ये मैंने बहुत पहले भी बताया था जब मैंने टाइम मैनेजमेंट बताया था बहनों। ये सुनने में बहुत ज्यादा फनी लगता है, लेकिन जिक्र जो है, जिक्र अभी ऐसा है कि अगर दो बहनें बैठकर बात भी कर रही है ना तो भी अल्लाह की बात कर रही हैं। जिक्र कहीं भी किसी भी टाइम से जो है वो क्या है, रिलेटेड नहीं है किसी भी टाइम से। कि चलो मैं नमाज के बाद जो है क्या कर लेती हूँ, नमाज के बाद मैं एक तस्बीह पढ़ लेती हूँ, ठीक? या फिर इस वाली नमाज के बाद एक तस्बीह, जिक्र वो नहीं है, जिक्र रोजमर्रा की चीजें। जो बहनें घर में खाना बना रही हैं, अगर चमचा घुमाना पड़ रहा है ना भगोने में, तो जितनी बार वो चमचा घूम रहा है उतनी बार अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहू अकबर, ये जिक्र है। ये ज़िक्र है। और जब ज़ुबान को तर रखेंगी ना इस चीज़ के लिए, जब ज़ुबान को तर रखेंगे इस चीज़ से, तो क्या होगा, बरकत होगी, इतनी बरकत होगी कि सोच नहीं पाएँगे कितनी बरकत होगी। ठीक है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार अपने साथियों के साथ जा रहे थे, ठीक है? जुमदान उस पहाड़ का नाम था, और उन्होंने अपने साथियों से फरमाया, क्या फरमाया कि कुछ लोग आगे निकल गए, कुछ लोग सक्सेस पा गए, मतलब उन लोगों को क्या मिल गई है, सक्सेस मिल गई है। तो उन्होंने बोला कि कौन लोनर्स, किसकी आप बात कर रहे हैं या रसूल अल्लाह? तो उन्होंने कहा कि वो लोग जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र किया करते थे, वो क्या हुआ, वो सक्सेस हो गए, मतलब वो पहाड़ पर चढ़े नहीं थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो लोग आगे बढ़ गए, हम लोग से भी आगे बढ़ गए, हम लोग से आगे चले गए, ठीक। तो वो कौन लोग थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उनके साथियों ने पूछा, वो कौन लोग, जो जिक्र करते हैं अल्लाह का, वो सक्सेस पा चुके हैं, वो हमसे भी आगे निकल गए। सोचिए कितनी बड़ी चीज है, जो जिक्र करता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। और पता है, खुशी खुशी जब मिलती है ना अल्लाह का जिक्र करने में, हर चीज में सिर्फ वही चाहिए, सिर्फ हर चीज में वही चाहिए, किसी और चीज से मतलब ही नहीं है, सिर्फ अल्लाह चाहिए। सबको मात देकर आगे बढ़ गए। कौन? जो ज़िक्र करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। ज़िक्र वो नहीं है जो किसी एक जगह से बंधा है, ये चीज़ जान के रखिएगा, है ना? तस्बीह में नहीं पढ़ना है। रोज़
चल रहे हैं ना तो हर कदम पे अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना? हर चीज़ पे अल्लाहू अकबर, किसी भी चीज़ में, ठीक? हर चीज़ में सिर्फ़ ज़िक्र को ले आ लें। अपनी ज़ुबान को क्या करना है, खाना बना रहे हैं, जब दोस्तों के साथ हो, रास्ते में हो, सीढ़ियाँ चढ़ रहे तो हर सीढ़ी पे सुभान अल्लाह पढ़ो। 12 सीढ़ियाँ होंगी तो 12, फिर नीचे उतरेंगे तो 24, सुभान अल्लाह। वर्कआउट कर रहे हो, हर चीज़ में, डेली लाइफ़ के रूटीन में ये चीज़ लेकर आनी है, ठीक? इसी तरीके से एक बेकर की स्टोरी आती है कि उसकी ना जो थी मतलब बहुत उसकी वो दुआएँ उसकी कबूल हुआ करती थी। तो मतलब लोग ने कहा कि यार ये तो कुछ काम भी नहीं करता है, और शायद वो नमाज नहीं पढ़ता था, कुछ ऐसा था। मुझे पूरी स्टोरी सही से नहीं पता है। तो क्या था कि नमाज नहीं पढ़ा करता था, तो उसको मतलब पता चला बाद में कि उसकी दुआएं इतनी कैसे कबूल होती हैं। क्योंकि जब वो अपने डो के लिए डो गूंदा, डो पता है ना, आटा होता है, बेकर जो मतलब केक वगैरह बनाने के लिए जो आटा होता है, मैदा जो गूंद रहा होता है, जब वो डो बना रहा होता था ना, तो हर मुट्ठी में जितनी बार वो आटा गूंथता था, उतनी बार वो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहू अकबर, सोचो जितनी बार चम्मच चलाता होगा, जितनी बार कुछ काम करता होगा, तो दिन भर में कितना ज़िक्र, इतना ज़िक्र और इतनी बरकत और इतनी दुआओं की कबूलियत, सुभान अल्लाह। तो ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? इसमें 2 चीज़ें बहुत अहम है, तो शुक्र और एक ज़िक्र, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक? तीसरा क्या है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला में देखिए बोला तो सो रिमेंबर मी आई विल रिमेंबर यू, सूरह अल बकरा की आयत है ये 152, यानी कि तुम मुझे याद करो तो मैं भी तुम्हें याद करूँगा। तो जब अल्लाह आपको याद करेगा तो क्या चाहिए फिर? कुछ चाहिए ज़िंदगी में और कुछ नहीं चाहिए उसके अलावा, ठीक? कीप द कंपनी ऑफ गुड पीपल, अच्छे लोगों की कंपनी, अच्छे लोगों की संगत। उन लोगों की संगत में रहो जो अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, और जो बेहतर है, मतलब जो बेहतर है अपने दोस्तों को ईमान के रास्ते पर लेकर आएँ, ठीक है? उनसे सब्र सीखें, खुद को आदत डालें कि हम किस तरीके से जो है उनके साथ रहें। छोड़ दें उन लोगों को जो बिल्कुल सी सारी चीज़ें हैं। स्टोरी है यहाँ पर इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की, ये कज़िन थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, बचपन से उन्हीं के साथ रहे, यहाँ तक कि वफ़ात के साथ भी आप ही के साथ थे। और तब तक मदीने में सब लौटे, और लौटने के बाद जो है वो कहने लगे कि देखो अब तो हर जगह सहाबा ही हैं, हर जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त हैं। तो उन्होंने अपने दोस्त से कहा, क्या कहा इब्ने अब्बास ने अपने दोस्त से कहा, उनके दोस्त का नाम था उनके दोस्त का नाम मैं भूल गई हूँ एक्चुअली। तो उनके दोस्त से उन्होंने कहा कि क्यों ना मतलब हम एक काम करें कि इतने सहाबा हैं, सबके पास कितनी नॉलेज होगी, तो उनसे हम हदीस कलेक्ट करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कितनी सारी चीजें बताई होंगी, तो हम क्या करते हैं, नॉलेज कलेक्ट करते हैं। नॉलेज कलेक्ट करते हैं और हमको कितना मजा आएगा। सोचो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद जो कजिन थे वो बोल रहे हैं कि हम नॉलेज कलेक्ट करते हैं, हदीस कलेक्ट करते हैं, इल्म सीखते हैं उनसे कि चलो मदीने में हर जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंपेनियन है, हर जगह साथी है। तो उनके दोस्त ने कहा क्यों ना कबूतर के साथ खेले, इतनी दूर जाएंगे, सीखेंगे, फिर उनको तोहफे भी देने होंगे, तो फिजूल खर्ची होगी, तो मैं नहीं जाता हूँ और तुम चले जाओ। उन्होंने अपने दोस्त को वहीं छोड़ा और जाकर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे, जो सहाबा थे, उनकी सीढ़ियों पर जाकर सोना शुरू कर दिया। एक की सीढ़ी पर जाकर सोते थे, फिर दूसरी की सीढ़ी पर जाकर सोते थे, और इतनी इन्फॉर्मेशन, इतनी हदीस और सुन्ना उन्होंने कलेक्ट की ना, इब्ने अब्बास ने इतनी ज़्यादा सुन्ना कलेक्ट की ना, सालों बाद जब वो आए लौट कर, तो वो दोस्त आज भी कबूतर से ही खेल रहा था। एडल्ट हो गया था, बड़ा हो गया था, आज भी वो कबूतर से ही खेल रहा था। और इब्ने अब्बास जो थे इस्लाम की हिस्ट्री में फर्स्ट यूनिवर्सिटी बन चुके थे, सुभान अल्लाह। तो दोस्तों की कंपनी भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। देखो उन्होंने अपना सारा वक्त कलेक्ट करने में गुजारा, क्या कलेक्ट करने में, हदीस, अल्लाह की सारी चीजें, तो जो जो वक्त अल्लाह के काम में यूज हुआ उसमें तो बरकत ही है ना? अब क्या है, हम सब क्या है, ये है कि मतलब इतनी सारी चीजें हो गई, इतनी सारी चीजें हमने पढ़ ली, बरकत का हमको पता चला कि अल्लाह सुब्हाना व तआला जो है हमको क्या करे, हमारे टाइम में बरकत अता फरमाए।
ठीक? अच्छा काम करने का जो है, अच्छे काम करने से जो है मतलब क्या होता है, हम लोग को एन्जॉयमेंट आए और बुरे काम करने से बचते हों, ऐसे ऐसे जो है दोस्तों की हमको कंपनी रखनी है। तो आज का टॉपिक क्या था कि किस तरीके से बरकत जो है की जाती है, उसमें बरकत का मतलब पहली चीज़ यही है कि एक का दो नहीं होता है, वो एक कितना बेहतर है वो मायने रखता है, और वो एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नज़र में कितना बेहतर है, दुनिया की नज़र में नहीं, है ना? बरकत का सबसे पहला पहला मतलब है बेहतर। मोर का मतलब है वहां पर बेहतर, ज्यादा का मतलब वहां क्वांटिटी से नहीं है, तो ये चीज हम ध्यान रखेंगे, है ना? और सदका जितना हो उतना दें। शुक्र करने से, जिस शुक्र का क्या है कि जिस चीज के लिए कर रहे हैं उस चीज में इजाफा होगा, और शुक्र कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि वो टाइम का भी हमको मिलेगा। तो शुक्र करने के दो दो फायदे हैं कि एक टाइम हमारा शुक्र में जा रहा है तो टाइम में बरकत, और जिस चीज के लिए जा रहा है उस चीज में बरकत, है ना? इंशाल्लाह तो ये सातों चीजें हम लोग याद रखेंगे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के टाइम में हमको बरकत दे। ठीक है? आमीन सुम्मा आमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार व किना अज़ाबल क़ब्र व किना अज़ाबल हश्र व किना अज़ाबल फितनतुल मसीह दज्जाल व किना अज़ाबल पुल सिरात। या अल्लाह तू गफूरुर रहीम है, या अल्लाह तू गफूरुर रहीम है, या अल्लाह तू माफ करने वाला है, तू मालिक है, तू बादशाहों का बादशाह है मेरे मौलाया करीम। या अल्लाह एक बार फिर से तेरी बारगाह में मेरे मौलाया करीम इन सब बहनों ने हाथ उठाए हैं, या अल्लाह तूने बुलाया है, तूने चुना है, तो मेरे मौलाया करीम ये आए हैं, तेरी हिदायत से आए हैं, तेरी मोहब्बत में ये बहनें यहाँ आकर बैठी हुई है। या अल्लाह इन सब के गुनाहों को माफ फरमा, या अल्लाह इन सब की गुनाहों को माफ फरमा। या अल्लाह तू गफूरुर रहीम है, या अल्लाह तू पसंद करता है गुनाहों को माफ करना। या अल्लाह हम सभी के गुनाहों को माफ फरमा। या अल्लाह आज का जो हमारा सेशन था मेरे मौलाए करीम, उन चीज को या अल्लाह उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा, या अल्लाह उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह तो हमारे इस दीनी काम को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह कुछ बहनें बहुत परेशान हाल हैं, या अल्लाह बहुत तकलीफ में हैं, तू बेशक सब जानता है। या अल्लाह तू सबके दिलों में जो है वो जानता है। या अल्लाह तू उसकी तकलीफ भी जानता है जो बोलते हैं, या अल्लाह तू उसकी भी जानता है जो बोल नहीं सकते। या अल्लाह कुछ लोग हैं जो अंदर ही अंदर घुटते हैं, या अल्लाह किसी से ना कह सकते हैं ना बता सकते हैं। या अल्लाह गै गैरत के मारे ना कर सकते, मेरे मौला करीम गैरत के मारे ना किसी से कह सकते हैं। या अल्लाह तू दिलों के राज जानता है मेरे मौला करीम, उन सब की तकलीफों को दूर अता फरमा। या अल्लाह या अल्लाह उनके दिलों को सुकून अता फरमा। या अल्लाह हम तेरे उसी सुकून के तलबगार हैं मेरे मौलाए करीम, हमें हमें उसी सुकून का तलबगार बना। या अल्लाह जो दुनिया में सुकून है उससे बचाना। या अल्लाह दुनिया का सुकून फानी है, या अल्लाह ये दुनिया फानी है, या अल्लाह ये दुनिया धोखे का सौदा है। या अल्लाह शैतान मरदूद से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारी नफ्स पे है, या अल्लाह शैतान हमारी नफ्स पे है, या अल्लाह हमें अपने नफ्स पे बेहतर काबू पाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह बेबस है, या अल्लाह गलतियाँ करते हैं, अल्लाह फिर माफ़ी माँगते हैं, फिर गलतियाँ करते हैं। या अल्लाह हमें तो शर्म भी नहीं आती। या अल्लाह हमें तो शर्म भी नहीं आती, हम तेरी तरफ लौटते हैं, या अल्लाह एक कदम आगे बढ़ते हैं, अल्लाह 10 कदम पीछे चले जाते हैं, अल्लाह। या अल्लाह सर से पाँव तक या अल्लाह गुनाहों में घिरे हुए, या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह इस रमज़ान को हमारी मग़फ़िरत का ज़रिया बना दे। या अल्लाह ऐसे बदले इस रमज़ान में कि तेरे हबीब हो जाए। या अल्लाह
तू हम या अल्लाह तू हमें पसंद करे। या अल्लाह दुनिया में इतनी या अल्लाह दुनिया में इतने उलझ गए कि आखिरत याद ही नहीं है। या अल्लाह तेरे पास लौटना है उसका तसव्वुर ही नहीं आता है। या अल्लाह दुनिया के कामों में इतना ज्यादा उलझ गए। या अल्लाह भटके हुए अल्लाह तुझ पर लौट आए। या अल्लाह मरते दम तक अपनी अपनी राह पर चलने वाला बना दे। या अल्लाह आपस में लड़ते हैं। या अल्लाह आपस में लड़ते हैं। अल्लाह लड़ाइयों को मेरे मौलाए करीम सुलह में तब्दील कर दे। या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिका। या अल्लाह ए दिलों को फेरने वाले मेरे दिल को, हम सब के दिलों को अपने दीन की तरफ फेर दे। या अल्लाह जितनी भी बहनें हैं या अल्लाह जिनका निकाह नहीं हुआ, या अल्लाह ऐसा रिश्ता अता फरमा मेरे मौलाए करीम, ऐसा रिश्ता या अल्लाह जो तेरे दीन से शुरू होकर तेरे दीन पे खत्म हो या अल्लाह, और दीन मुकम्मल हो। या अल्लाह ऐसे रिश्ते अता फरमा जो तेरे दीन से शुरू होकर तेरे दीन पे खत्म हो। या अल्लाह हम हमारी दिली जायज दुआओं को कबूल फरमाए। या अल्लाह जितने हाथ आज तेरी बारगाह में उठे हैं या अल्लाह उन सब की दिली जायज दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह ये वो है जो तेरी राह में कोशिश कर रहे हैं। या अल्लाह तू तो पसंद करता है कोशिश करने वाले को। या अल्लाह हमें भी हिदायत दे। अल्लाह हमें भी पसंद फरमा। या अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा। या अल्लाह जब कोई अजीज बीमार होता है तो अल्लाह पूरा घर परेशान हो जाता है। या अल्लाह पूरा घर परेशान हो जाता है। या अल्लाह किसी के पास तो इतना पैसा भी नहीं होता। या अल्लाह सारी जमा पूंजी खत्म हो जाती है। या अल्लाह या शाफी हो तू शिफा देता है मेरे मौलाए करीम, बीमारों को शिफा अता फरमा। या अल्लाह परेशानियों से निकाल दे। या अल्लाह परेशानियों से निकाल दे। या अल्लाह हलाल रिस्क खाने वाला बना। या अल्लाह हराम से बचा। या अल्लाह क्या जवाब देंगे कि क्या कमाया था और क्या खाया था मेरे मौलाए करीम, हम तो कुछ बोल ना पाएंगे। अल्लाह कुछ ना बोल पाएंगे तेरे सामने। ना अल्लाह ना जुबान काम करेगी, ना आंखें उठ पाएंगी। अल्लाह जितने गुनाहों में मुब्तला है अल्लाह हमको माफ फरमा दे। या अल्लाह दुनिया से उठाना जब हमसे राजी हो जाए। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुस्नल खातिमा। या अल्लाह हमारी मौत, या अल्लाह हमारी जब मौत आए तो हमसे राजी हो जाना। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुस्नल खातिमा। या अल्लाह बहुत जुल्म करते हैं, खुद पर जुल्म करते हैं, अपनी नफ्सों पर जुल्म करते हैं। या अल्लाह एहसास खत्म हो गए हैं। या अल्लाह झूठ में मुब्तला है। या अल्लाह रियाकारी में मुब्तला है। या अल्लाह गीबत में पड़ चुके हैं। या अल्लाह अपनी ही बहनों को बुरा बोलते हैं। या अल्लाह अपने ही भाइयों को बुरा बोलते। या अल्लाह तूने तो मोहब्बत सिखाई है, ये नफरत कहाँ से सीख ली। या अल्लाह तू तो मोहब्बत का पैगाम देता है। या अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मोहब्बत के पैगाम दिए, नफरत कहाँ से। या अल्लाह तू तो सच का रास्ता है, झूठ कहाँ से सीख लिया। या अल्लाह तू तो दूसरों की मदद करना सिखाता है। या अल्लाह कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, कहाँ जा रहे हैं। या अल्लाह तू वापस ले आ, तू सिरातल मुस्तकीम पर ले आ मेरे मौला। या अल्लाह तू निकाल ले, इन सब से बचा ले। या अल्लाह टूटे हैं तू जोड़ दे। या अल्लाह बिखरे हैं तू समेट ले। या अल्लाह टूट चुके हैं। या अल्लाह दुनिया की चीजों में ऐसे उलझे हैं या अल्लाह के निकलने का रास्ता ही नहीं है। या अल्लाह तू निकाल ले, अपनी रहमत की रस्सी डालकर तू निकाल। या अल्लाह तुझे तेरा खाते हैं, तुझे से मांगते हैं, या अल्लाह अता फरमा। या अल्लाह गुमराह है। या अल्लाह गुमराह है, तू सिरातल मुस्तकीम पर ले आ। या अल्लाह हिम्मत नहीं है इस दुनिया को और बर्दाश्त करने की। या अल्लाह हिम्मतें टूट चुकी है। या अल्लाह सब्र जमील अता फरमा। या अल्लाह सब्र जमील अता फरमा। या अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा। या अल्लाह तूने तो अय्यूब अलैहिस्सलाम को शिफा अता फरमाई थी, अल्लाह उसी तरीके से शिफा अता फरमा। या अल्लाह बे औलादों को औलाद देता है। या अल्लाह ज़करिया अलैहिस्सलाम को यहया अलैहिस्सलाम अता करने वाले बे औलादों को औलाद अता फरमा। या अल्लाह रिज़्क की दौलत अता फरमा। या अल्लाह दीन की दौलत अता फरमा। अपनी मोहब्बत से माला माल कर दे। या अल्लाह पुल सिरात का रास्ता आसान रखना। या अल्लाह कब्र के अजाब से बचा। या अल्लाह इतनी हिम्मत नहीं है अल्लाह, ना नमाजें दुरुस्त है या अल्लाह पता नहीं कबूल भी होती है नहीं, फिर भी इतना गुरूर, फिर भी इतना घमंड, फिर भी इतना तकब्बुर।
یا اللہ یہ نہیں پتا کہ دن کی 5 نمازوں میں سے ایک بھی قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، یا اللہ یہ نہیں پتا کہ جو قرآن کی تلاوت کر رہے پھر بھی اتنا ہم میں گھمنڈ آ گیا ہے، یا اللہ ان سب چیزوں سے یا قدوس ہو، یا قدوس ہو، اے پاک رہنے والے پروردگار، ہمیں ان سب چیزوں سے پاک فرما، یا اللہ ہمیں ریاکاری سے پاک کر دے، یا اللہ ہمیں جھوٹ سے پاک کر دے میرے مولا کریم، یا اللہ صبر جمیل والا بنا، یا اللہ برداشت والا بنا، یا اللہ رشتے نبھانے والا بنا، یا اللہ اسلام کا بول بالا ہو ہر جگہ، یا اللہ سب لڑکیوں کے نصیب بلند ہو، یا اللہ، یا اللہ مریم علیہ السلام جیسا پاک بنا دے، یا اللہ ایسی پاکیزگی عطا فرما جیسے تو نے مریم علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، اور جو بھٹکی ہوئی ہے یا اللہ، جو بہنیں بھٹکی ہوئی ہے یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ دین اور دنیا کے ساتھ لے کر چلنے والا بنا دے، اے دن کو رات میں بدلنے والے، اے دل کو رات میں بدلنے والے، ہماری لاچاری کو قابلیت میں بدل دے، یا اللہ ہماری کمزوری کو ہمارے ایمان کی مضبوطی میں بدل دے، یا اللہ اس دروازے کو نہ کھٹکھٹائے جو تیرا نہ ہو، یا اللہ اس کے پیچھے نہ بھاگے جو تجھ تک نہ جوڑتا، یا اللہ اپنی نفسوں پہ ظلم نہ کریں، یا اللہ تکلیف دہ چیزوں سے محفوظ رکھنا، یا اللہ جو ہماری نفس کو تکلیف دے، جو ہمارے دل، جو ہمارے دماغ کو تکلیف دے، میرے مولا کریم ان چیزوں سے دور رکھ، یا اللہ تو الحمدللہ کلاس کو تا عمر تک میرے مولا کریم تا قیامت تک لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ عافیت والی زندگی عطا فرمائے، یا اللہ عافیت والی زندگی عطا فرمائے، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، یا اللہ جو مانگنے سے رہ گیا تو وہ بھی عطا فرمانا، یا اللہ جو مانگا ہے تو اسے بھی عطا فرمانا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل ہو گیا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔